Some news just coming in. Goldie Brar, the shooter conversation has been accessed. Gangster Goldie tipped off singers, shooters is what we're learning. Shooters drank, partied after killing Moosewala is what we are picking up. We're getting you all the details of the investigation in this matter on how this brutal murder of popular singer Sidhu Moosewala was planned. What we learn now is that Goldie Brar shooter conversation has now been accessed by us. The gangster Goldie Brar tipped off singers, shooters. The shooters also drank and partied after killing Moosewala is what we are learning. We also a while ago got you a story of how Lawrence Bishnoi's brothers, who are the accused in this case, have fled India using fake passports. The passports were made in Delhi city from Delhi's regional office, passport office is what we know. We're getting you more details in the manner in which Goldie Brar was involved in this. We have a conversation with the shooters that has now been accessed. Goldie Brar tipped off the singers, shooters. The shooters also made merry, partied and drank alcohol after killing Moosewala is what we are learning. Shreya Chatterjee has more details on that story. Talk to us, Shreya, about the conversations that have been accessed. This conversation between Goldie Brar and the shooters. Well, absolutely, Sneha. Alarming indeed. It was on the 28th of March, 20th of May, just a day prior to the shootout of Sidhu Moosewala. 11 a.m. Goldie Brar had called up the shooters, and what I believe that he had very categorically told Priyavrat Fauji that the security of Sidhu Moosewala has been downgraded, and this is the time that they should be ready to carry forward and execute the plan that they have been chalking. Now, on the 29th of May, when we talk about the Priyavrat Fauji module, which is the Bolero module, along with Ankit Sirsa and Keshav, they were at one location in Haryana, which was provided by them by a person named Navdeep. They met the other module, which is the Corolla module, which had the other lot, which includes Jagdeep, Rupa and the other shooters. They met at the Oklana Mandi area of Haryana. This was around 10:30. At 11 sharp, they left from the Oklana Mandi area to the Mansa area. Once they reached there, they again had a conversation between Goldie Brar. Remember, the wrecking was done prior, but these are the exclusive call details between Goldie Brar and the shooters that we have accessed from the time frame of 28th of May, 11 a.m. till the time the shootout was done. So Goldie Brar, sitting in Canada, who are they referring as doctor in the phone call, was in constant touch. First it was Priyavrat Fauji, who was heading the Bolero module, was called at 11 a.m. On the 28th of May, called and told that this is the time that you should execute the plan because Sidhu Moosewala's security has been downgraded. Priyavrat Fauji said that they are ready. 29th of May morning, they were at one place in Haryana, and at 10:30 a.m. they meet the others, the Corolla module with Jagdeep, Rupa in the Oklana Mandi area. They head for the Mansa area, and there you know that at the Jawahar Cave Road is where they gunned down Sidhu Moosewala. So these are the exclusive call details between the shooters and Goldie Brar of the Lawrence Bishnoi gang, who was sitting there in Canada orchestrating the entire plan. Yes, be with us. I'm going to come back to you for more on that. I'm going to go across straight to my colleague Arvind Oja, who's got more details on that story. Arvind, in conversation से ये evident है कि गोल्डी ब्रार को एक opportunity मिली, जैसे ही security downgrade हुआ और वो information public हो गई, उन्होंने कहा go for the kill, attack करिए, इस मौके का फायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, और सिद्धू मूसेवाले पर स्नेहा, इंडिया टुडे लगातार जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है, जिसमें आज हमें दो स्कूप इंडिया टुडे के पास है। पहली ये कि किस तरीके से एक बड़ी ही कॉन्स्पिरेसी, एक लंबी कॉन्स्पिरेसी के तहत लॉरेंस बिश्नोई ने अपने रिलेटिव, जो अपना भांजा है, उसको पहले इंडिया से बाहर फेक पासपोर्ट पर दुबई भिजवाया। उसके बाद अपने भाई अनमोल बिश्नोई को यूरोप भिजवाया। उसके बाद गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और उसका भांजा सचिन बिश्नोई, ये तीनों इंडिया के बाहर से प्लानिंग करते हैं। उसके बाद 28 मई को
पहला कॉल गोल्डी बरार का शूटर्स को आता है, जो मानसा विलेज के आसपास ही मौजूद थे, इस मौके की ताक में कि कब वो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करें। गोल्डी बरार का कॉल सुबह तकरीबन 7 बजे आता है शूटर्स को कि सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी है वो हटा दिया गया है, तुरंत अब जो काम है उसको अंजाम देना है। और आपको बताऊं कि जो गोल्डी बरार है उसका कोड नेम डॉक्टर है, जो शूटर्स है उसको डॉक्टर के नाम से बातचीत करते थे, ताकि एजेंसी जो है वो कॉल को अगर इंटरसेप्ट भी करती है तो वो पता नहीं चल सके कि किसके बीच की बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल। उसके बाद पहला कॉल जो शूटर प्रियव्रत फौजी है उसको आता है, और उसके बाद दूसरा जो कॉल्स है गोल्डी बरार कनाडा से बकायदा अपने शूटर्स को बताता है कि सिद्धू मूसेवाले का गेट, बड़ा गेट खुल चुका है। उसके बाद तीसरी कॉल्स में गोल्डी बरार बोलता है कि सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के अपने घर से निकल चुका है। तो कनाडा में बैठा गोल्डी बरार वो 3 ऐसे कॉल्स करता है, यानी उसको पूरी जानकारी थी। सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर जो रेकी करने वाले थे वो डायरेक्ट गोल्डी बरार को इस बात की जानकारी दे रहे थे। गोल्डी बरार शूटर्स को इस बात की जानकारी दे रहा था, और इस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई। तो एक पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी, ताकि अगर एजेंसी या पंजाब पुलिस इसकी जांच भी करती है तो इस जांच में वो पूरी तरह से एक तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाए और गोल्डी बरार तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक के बाद एक जो शूटर अरेस्ट किए हैं उनसे ये बातचीत में खुलासा हुआ है, और जो कॉल डिटेल्स है वो इंडिया टुडे के पास है, जिसमें क्या बातचीत हो रही थी उसके बारे हमने बताया कि कैसे 28 मई को, क्योंकि जब सिक्योरिटी कई वीवीआईपी की पंजाब में हटाई गई जिसमें सिद्धू मूसेवाला था, इसकी जानकारी जैसे ही गोल्डी बरार को लगी 28 मई को, पहली कॉल उसने शूटर को की प्रियव्रत फौजी को कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी गई है, तुरंत काम करो। अरविंद, ये बिल्कुल एक हैंडलर की तरह काम कर रहा था गोल्डी बरार। कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार हैंडलर की तरह काम कर रहा था। एंड व्यूअर्स, दिस इज द मोस्ट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गोल्डी बरार। आई थिंक वी really joined the dots. Arvind Oja with this exclusive report getting us a minute-to-minute conversation. Arvind, डॉक्टर साहब जो नाम वो यूज करते हैं, हैंडलर के तौर पे गोल्डी बरार काम करता है, और जो इस पे अटैकर्स हैं जिन्होंने मारा है सिद्धू मूसेवाला को, वो बार बार गोल्डी बरार को डॉक्टर साहब के नाम से एक तरीके से कोड नेम जो कि है वो यूज किया जा रहा है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। और ये भी कहा जाता है कि 29 मई के पहले ये पूरा काम हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया टुडे ने इसके पहले भी बताया था कि किस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, गोल्डी बरार वो कितना डेस्परेट था कि सिद्धू मूसेवाला को हर हाल में माना है। इसके लिए कई बार प्लानिंग हुई। एक बार प्लानिंग हुई कि जो ये गैंग है इसमें 2 लेडी गैंगस्टर को शामिल किया जाए, जिसमें एक को लेडी पुलिस बनाया जाए, दूसरे को मीडिया कर्मी, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के घर पर रेड के बहाने, ताकि ये पूरा ओरिजिनल लगे, और रेड के बहाने घुसा जाए, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जाए। लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। उसके बाद भी 2 से 3 बार अटेम्प्ट हुए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला दूसरे रूट से चला जाता था। लेकिन 28 मई को जब गोल्डी बरार को जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटाई गई है, उसने तुरंत कॉल किया प्रियव्रत फौजी को, और प्रियव्रत फौजी ने रिस्पॉन्स दिया कि जी डॉक्टर साहब काम हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल गोल्डी बरार को जो तमाम शूटर्स थे वो डॉक्टर साहब कहते थे, वो एक कोड नेम था। लॉरेंस बिश्नोई को टाइगर कहते थे, और काला जठेड़ी उसके भी शूटर इसमें शामिल है, काला जठेड़ी को अल्फा कहते थे। तो ये देखिए कि किस तरीके से ये जो गैंग है, एक तो ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है, इंटरनेशनल गैंग है, क्योंकि इंडिया के बाहर से जो जर्मन मेड और तुर्की मेड और तमाम किस्म के हथियार है, P-30, उसके अलावा ग्लॉक पिस्टल, वो आती है लॉरेंस बिश्नोई का कत्ल करने के लिए। और उसके बाद किस तरीके से पूरा ये जो प्लान है एग्जीक्यूट होता है, जिसमें गोल्डी बरार को डॉक्टर साहब नाम का कोड दिया जाता है, और वही बाकायदा बताता है 28 तारीख को सिक्योरिटी हटा दी गई है। 29 तारीख को कॉल करता है कि सिद्धू मूसेवाला अपने बड़ा के घर का जो कोठी है मानसा में, वो बड़ी कोठी खुल चुकी है। तीसरी कॉल करता है कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो बिना सिक्योरिटी के अपने घर से निकल चुका है। उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है।